کرتے ہیں وہ ہم دین کو نہیں دیکھتے کہ دین میں ہمارے بزرگان دین نے ہمیں کیا کیا مثالیں دی ہیں۔ 2 رکعت نماز کا جب اتمام کیا، ایک شخص قریب آیا کہ کہا مالک اشتر آپ نے سنا نہیں، وہ آپ کے بارے میں برائی کر رہے تھے، وہ آپ کے بارے میں قصد بیانی کر رہے تھے۔ تو مالک اشتر نے کہا کہ ہاں، جب میں نے یہ سنا تو میں نے سوچا کہ ان کو برا کہنے سے بہتر ہے میں 2 رکعت نماز بارگاہ احدیت میں ان کی ہدایت کے لیے پڑھوں۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت میزان ہے کہ یہاں انا نے یہ نہیں کہا کہ ان سے فساد کیا جائے، ان کو زیر تیغ کیا جائے یا ان سے جنگ کی جائے، ان کے لیے عاقبت مانگی جا رہی ہے، ان کے لیے ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں اب انا پرستی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں سے بھی مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے ہدایت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس انا پرستی کے وجہ سے آج سگے رشتے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور معاشرے میں جرائم کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جہاں پر ہم انا اور ایگو کی بات کر رہے ہیں، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو ڈیٹیل سے سمجھایا بھی اور بتایا بھی کہ سگے رشتے دار ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یا اپنی انا کی خاطر۔ بہت سی جگہوں پر ایسا بھی میں نے سنا کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے بیٹی کو، بیوی کو۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انا یا اسے ہم کہیں گے ایگو، یہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہو گئی؟ اس کی ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ تہمینہ، یہ بات جو بھی آپ نے کی، یہ بات بہت اہم ترین بات ہے۔ اور اس کی نسبت سے بھی پریویسلی جو ہے وہ 2 دن سے ایک خبر چل رہی ہے کہ ایک بچی کو قتل کر دیا اس کے شوہر نے، اور نام نہاد اس کی وجوہات بنائی گئی کہ کردار کشی کی گئی، عورت کو برا کہا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بچی کی ماں بھی تھی، لیکن اس کو قتل کیوں کیا گیا؟ کہ غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا۔ تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ غیرت کے مفاہیم کیا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو قتل کرتے ہیں؟ پروردگار نے تو کہا کہ ایک نفس کو جس نے قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو کیا غیرت کے نام پہ قتل کرنے والے غیرت کے مفاہیم سے واقف ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ جو شخص دوسرے شخص کو زندہ رہنے کی مہلت نہ دے یا اس کو جینے نہ دے تو وہ شرک اکبر کر رہا ہے۔ کیوں؟ زندگی خدا نے دی ہے اور زندگی اسی کی امانت ہے، وہ جب چاہے موت دے، جب چاہے زندگی دے۔ کوئی شخص اتنا حق نہیں رکھتا کہ وہ غیرت کے نام پہ کسی بیٹی کو، کسی بہن کو، کسی بہو کو قتل کر دے۔ کیوں؟ قرآن نے، ہماری احادیث نے خواتین کے لیے حقوق واضح کیے ہیں، اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اعمال کا بھی ہے تو پھر اعمال کے بارے میں بھی یہ کہوں گی کہ جزا اور سزا کا میزان بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اس انداز میں سزا دی جائے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ آج خواتین کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ جو خواتین غلط کام نہیں بھی کر رہی ہیں، الزام تراشی کی جاتی ہے۔ غیرت کیا ہے؟ غیرت کی پریسکرپشن اس ایرا میں، ماڈریٹ ایرا میں بہت سے لوگ غیرت کی پریسکرپشن یہ بناتے ہیں کہ اپنی مرضی کے تحت خواتین کو الزام لگا کے ان کے کردار کو مسخ کر کے بیان کیا گیا، اور ایک مرد نے کیا کہا، تمام معاشرہ اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا، یہ نہیں سوچا کہ اس عورت کے کردار میں کیا یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے، خواتین کے بارے میں بھی یہی کہوں گی، غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کرنے والے غیرت کے معنی اور مفاہیم نہیں جانتے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پروردگار کے احکامات میں شامل ہو کے شرک کرتے ہیں، کسی کی زندگی چھین کے گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے امے فرما، جہاں پر ہم غیرت کے نام پر قتل کی بات کر رہے ہیں، غیرت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو اور اس معاشرے کو اگر میں آپ سے یہ کہوں، ویسے تو میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ غیرت کسے کہا جاتا ہے اور غیرت کیا ہے اور غیرت دکھانی کہاں چاہیے، غیرت دکھائی کہاں جاتی ہے، یہ بھی ایک علیحدہ قصے اور کہانیاں ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں غیرت کسے کہا جاتا ہے؟ کیا غیرت صرف اور صرف مرد حضرات کے اندر ہوتی ہے یا یہ خواتین میں بھی ہوتی ہے، اور اس کو ہم ریلیٹ کریں گے اپنے دین کے ساتھ؟ تہمینہ، یہ بات جو آپ نے ابھی کی، اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ جہاں ہر جگہ یہ پیغام دیتی ہوں کہ جہاں دین کی بنائی ہوئی حدود سے، قیود سے انسان باہر نکلتا ہے، وہاں اسے ہمیشہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بے شک۔ اور غیرت کی حدود، میں یہ کہتی ہوں کہ غیرت نام نہاد لبادہ اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ غیرت کا تعلق انسان کی صفت، انسان کی سوچ، انسان کی نیچر سے ہے۔ اس کے
अंदरूनी हैयत से है। बात लोग ज़ाहिरी तौर पे बहुत विरचुस, बहुत खूबसूरत, बहुत नेक, बहुत पाकीज़ा होते हैं, लेकिन उनके किरदार इतने मस्क होते हैं कि हकीकी किरदार का जब पता चलता है तो अफसोस होता है। तो गैरत का ताल्लुक इंसान की अंदरूनी इंटरनल इंटेंशन से है कि उसकी अपनी क्या जिसे कहते हैं क्या थिंकिंग है, उसकी सोच क्या है, उसके सोचने का अंदाज क्या है। अब जब इंसान गैरत के जीने पे खड़ा होता है तो वहां उसको ये तमीज होनी चाहिए कि हक क्या है और बातिल क्या है। और जो शख्स बातिल को ना पहचाने, हक का तबा न करे, उसका गैरत से कोई लेना देना नहीं है। दीन में वो शख्स गैरतमंद है जो हक को सच कहे, जो बातिल की नफी करे, वही शख्स गैरत को जानता भी है और समझता भी है। और खवातीन में गैरत, आपने कहा खवातीन में गैरत के नाम पे बात हुई, तो हमारे यहाँ सोसाइटी में, मुआशरे में अमूमन ये कॉन्सेप्शंस लिए जाते हैं कि खवातीन वो जो है जो बहुत ज्यादा इस्लाम के कवानीन के मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, वो बागैरत हैं, उनमें गैरत मौजूद है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अतवाए दीन नहीं कर रहे, वो दीन के नाम पे जो है वो गैरत के कयूद से, हदूद से बाहर है। लेकिन मैं ये कहती चलूंगी, जब औरत को अपनी हैसियत का पता चल जाए और वो ये समझ ले कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक बेटी हूँ, और वो उन फराइज को जानते हुए उन फराइज को, हकूक को अदा भी करे, और फिर उन रिश्तों की कदर कीमत को इस तरह बहाल रखे कि अगर उसका शौहर है तो वो शौहर के लिए काबिल फख्र है। यहाँ मिसाल जनाब फातिमा ज़हरा सैयदतुन्निसाइल आलमीन की है कि वो बीबी है कि जिनके शौहर फख्र करके कहते हैं कि सैयदा मेरी बीबी है। हाँ। यहाँ मिसाल जनाब हजरत ज़ैनब आलिया अलैहिस्सलाम की है कि जिनके बारे में फख्र करके जनाब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ने कहा कि मेरी बहन शरीकतुल हुसैन है। इतनी खूबसूरत और कामिल बहन है कि जिसकी गैरत का ये मयार है कि अपने भाई की नफ्स में, भाई की जात में शरीक हो गई है। बेटी होने का ये मयार है कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह जैसी बेटी कि जिसने अपने बाप के दीन के लिए मसाइब व आलाम बर्दाश्त किए, और आज बीबी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह अपने वालिद के नाम से मौसूम की जाती हैं, तो उनकी गैरत का अंदाजा होता है कि शहजादी ने 4 साल के सिन में औरत की गैरत का दिफा कितने खूबसूरत अंदाज में किया है कि हर मुकाम पे तमाचे खाती रही, मजालिम बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपने बाबा के दीन के लिए हर चीज को बर्दाश्त करके ये साबित कर दिया कि बेहतरीन बेटी होने का हक ऐसा होता है। औरत की गैरत यही है कि वो एक बेहतरीन माँ हो, एक बेहतरीन बीवी हो, काबिल फख्र बेटी हो और काबिल इज्जत बहन हो। जी बिल्कुल ठीक है। उम्मे फरवा ये बताइए कि आपने कहा कि यकीनन बात भी ऐसे ही है कि जहां पर हम दीन की हदूदो कयूद से बाहर जाते हैं तो हम गुनाहगार भी ठहराते हैं और हम मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। यकीनन गैरत के नाम पर जो कत्ल किया जाता है, ये गैरत को बीच में लाते हुए बहुत सी चीजों के बहाने बनाए जाते हैं, या किसी की किरदार कशी करते हुए हम कह देते हैं कि इसने ये काम किया, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इस वजह से ये मामला ऐसे हो गया। ऐसी स्टोरीज आपने बहुत से घरों की सुनी होंगी, बहुत से खानदानों की ऐसी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। उम्मे फरवा, क्या दीन इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपकी अपनी बीवी, बहन, बेटी या माँ, यही रिश्ते होते हैं ना जहां भी आप हदूदों का युद्ध रखते हैं, बाहर नहीं जाना, यहां नहीं जाना, ऐसे नहीं होना, और यकीनन रखने भी चाहिए जहां तक दीन इजाजत देता है। आप क्या समझती हैं कि अगर कोई ऐसा काम औरत से हो जाए जिसकी इजाजत दीन नहीं देता, तो यकीनन वो गुनाहगार है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको ट्रीट भी किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला ने तो ये ऑर्डर किसी मर्द को नहीं दिया कि अगर तुम्हारी बहन ने कोई गलत काम किया, बीवी ने किया, माँ ने किया, मैं ये नहीं कह रही कभी नहीं करती औरत, अगर किया तो तुम उसे कत्ल कर दो या तुम उसे मारना पीटना शुरू कर दो, या तशद्दुद और जुल्म की बेशुमार कहानियां आपने देखी होंगी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर दिखाई जाती हैं। क्या अल्लाह ने इजाजत दी है? तहमीना, ये असर हाजिर का बहुत बड़ा अलमिया है, और ये बात कहूंगी कि सोशल मीडिया पे भी रोजाना तकरीबन हम लोग भी देखते हैं कि खवातीन के साथ जहाँ तशद्दुद के वाकयात हैं, वहाँ अदब बर्दाश्त का ये आलम है कि मर्द ये नहीं सोच रहा होता कि जिसको वो तशद्दुद का निशाना बना रहा है वो बेटी है, बहन है या माँ है। दीन के बारे में यही बात कहूंगी कि जो लोग जब अपने बारे में बात करते हैं तो फिर वो अपने अमाल के बारे में बात करते हुए दीन के हवाले देते हैं, और जब तशद्दुद की बात होती है, खवातीन की बात होती है, वहां दीन को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दिया जाता है। वहां
तशद्दुद भी किया जाता है, वहाँ औरत के साथ हर तरह की बदकलामी की जाती है। जबकि मैं ये कहती चलूंगी कि बेशक परवरदिगार आलम ने औरत को मती बनाया मर्द के लिए। क्यों? परवरदिगार आलम ने कलाम पाक में कह दिया कि तुम्हारी खवातीन, एक शौहर के लिए, एक बीवी के लिए ऐलान करके कह दिया कि तुम अपने मर्दों का लिबास हो और मर्द तुम्हारा लिबास है। तो देखिए कि यहाँ तफसीर इतनी खूबसूरत है कि अगर लिबास आपका ज़ाहिरी खूबसूरत और पाक है तो उससे आपकी शनाख्त कितनी अजीम होगी। अगर आपके लिबास में गंदगी या निजासत है तो आपकी शख्सियत का कितनी खूबसूरत हो, लेकिन आपका ज़ाहिरी लिबास अगर खूबसूरत नहीं है, पाक नहीं है, तो लोग आपकी कदर व कीमत नहीं जान पाएंगे। तो औरत को मर्द का लिबास और मर्द को औरत का लिबास करार देके परवरदिगार ने लाजिम व मलजूम कर दिया कि तुम उसकी इज्जत करो, तुम उसके रिश्तों को की कदर करो, तुम उसके हकूक को जानो, तुम उसकी जरूरतों को पूरा करो। औरत तुम्हारी कदर करेगी, औरत तुम्हारी इज्जत करेगी। मर्द जब तशद्दुद करता है तो वजूहात नहीं पूछी जाती कि इस औरत के साथ तशद्दुद करने की वजूहात क्या थी। कभी एक औरत जाती तौर पे मर्द के साथ बदकलामी नहीं करेगी, कभी एक औरत अपने मर्द की इज्जत को मजरूह नहीं करेगी। लेकिन जब वो मर्द उसके साथ गलत अतवार से पेश आएगा, उसके हुकूक को सुल्ब करेगा, उसकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देगा, उसके हकूक पामाल हो जाएंगे, उसकी जिंदगी में कुछ और शमूलियत हो जाएगी, तो वहां औरत जब एहतजाज करती है तो उसके रिस्पांस में फिर ये तशद्दुद मर्द की तरफ से आता है और मर्द अदम बर्दाश्त का शिकार होता है। लेकिन आप देखेंगे गैरत के नाम पे कभी औरत ने मर्द को कत्ल नहीं किया। ये कितनी खूबसूरत बात है कि परवरदिगार ने औरत को सब्र के पैमाने 70 अता किए हैं कि औरत बर्दाश्त करती है। मर्द अगर किसी भी तरह से, मर्द में ये कितने पैमाने रखे गए हैं? औरत में तो 70 रखे गए हैं। जी, मैं यही बात कहूंगी कि मर्द में अगर एक पैमाना है ना सब्र का, तो औरत को 70 गुना सब्र अता किया गया। यही वजह है कि आज मर्द तो कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खवातीन, औरतें उस तशद्दुद को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन उस मर्द को कत्ल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दीन ने उन्हें वो सब्र अता किया है। अल्लाह ने उनकी हैयत में वो चीज डाली है कि अगर माँ है तो सेक्रीफाइस करेगी, अगर बेटी है तो अपने खानदान के लिए कुर्बानी देगी, अगर बहन है तो बर्दाश्त करेगी। तो औरत का हर मुकाम बड़ा खूबसूरत है। लेकिन अगर कहीं औरत गलत है तो दीन ने उसकी हदूद भी बनाई है, दीन ने उसकी जज़ा व सजा का मुकाम भी करार दिया है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ 95% औरतें वो हैं कि जो अपने मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होके उनकी मुश्किलों में साथ देती हैं, उनके कम वसाइल में अपनी जिंदगी को गुजार भी रही हैं और शुक्रगुजार भी हैं। हैंड सैनिटाइजर अल्फा 1 पाकिस्तान का पहला FDA और ड्रैप से मंजूर शुदा फार्मूले के तहत तैयार करदा 99.9% जरासीम मारता है। अल्फा 1 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 1 लीटर में भी दस्तयाब है। अल्फा 1 मार्केटेड बाय मेडिसेफ नेम ऑफ ट्रस्ट। ऑर्डर के लिए राब्ता नंबर 0300 8736 752। जामिया बरकातुल अलूम, जामिया फातमिया तालीमुल कुरआन, रेलवे कैरेज शॉप, जामिया फातमिया बिनातुल मुस्लिमीन मुगलपुरा लाहौर में महदूद नशिस्तों के लिए दाखिला जारी। तलबा और तालिबात के लिए अलग अलग कैंपस, कंप्यूटर लैब जैसी तमाम सहूलियात से आरास्ता और फ्री मेडिकल। लाइट जाने की सूरत में जनरेटर की सहूलत मुयस्सर है। राबिता 0321 4121 515 0333 4263 781। हैंड सैनिटाइजर अल्फा 1 पाकिस्तान का पहला FDA और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा फार्मूले के तहत तैयार करदा हैंड सैनिटाइजर अल्फा 1 99.9% जरासीम मारता है, आपको किसी भी तरह के वायरस से महफूज रखता है। नो जेल एडिड इन द फॉर्मुलेशन। अल्फा 1 75% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और लीमू की खुशबू से तैयार किया गया है। अल्फा 1 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 1 लीटर में भी दस्तयाब है। हैंड सैनिटाइजर अल्फा 1 50 मिलीलीटर
150 रुपए, 100 मिलीलीटर 250 रुपए, 1 लीटर 2290 रुपए में दस्तयाब है। अल्फा 1 marketed by Pakistan, most trusted name of pharmaceutical Medisafe Pharma, Medisafe name of trust। ऑर्डर के लिए राब्ता नंबर 0300 8736 752। बहादुरी वाला काम है ये। जब आपने किया तो आपके घर वालों ने ये नहीं कहा कि यार ये बच्चे तेरे हैं, बीवी तेरी है, करने क्या लगा है तू? एक दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीर मिम्मन ख़लक़ तफ़सील। इसका तर्जुमा मफ़हूम ये है कि आप उसको देखें और अल्लाह की तारीफ बयान करें और कहें कि अल्लाह जिसमें ये मुब्तला है मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। ठीक है। और इस यकीन के साथ जब आपने पढ़ ली कि अल्लाह आपको उसमें मुब्तला नहीं करेगा तो आपकी आखिरी सांस तक आपको वो नहीं होगा। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर। कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। 1000 बार समझाया मगर बीवी यही कहती है तू झूठा है, अब भी वो लड़की तेरे दिल में रहती है। किसी खानदान के बंदे की शादी में भी नहीं जाती, क्योंकि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो समझते हैं आप यहाँ भी शादी कराने आई हैं। तो उस दिन ये ज़हन में नहीं रहा कि मैं किसी को बता ही दूं कि मुझे तैरना नहीं आता, तो निकाल लेना। हाँ। तो उस दिन बंदा तो दूर की बात पूल में पानी भी देगा। कैमरे अभी बंद नहीं हुए थे, लेकिन वो मरने वाले ने समझा शायद बंद हो चुके हैं, वो उठ के खड़े हो गए। इटली में क्या गोरी नजर आ गई तो आपने क्या? नहीं गोदी नहीं देते, चलो रखो मची मेरी बात तो सुनिए। कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। तो ये स्कूल्स हैं वो चार्जेस तो अपनी क्वार्टरली जो फीस उनकी फी जा रही है, फी तो वो पूरी ले रहे हैं, उनके ओवरहेड्स नहीं है, उनके बिजली के बिल नहीं है, उनके टीचर्स फिजिकली नहीं जा रहे, तो उनके जो मेजर और उनकी बिल्डिंग्स के रेंट नहीं जा रहे। दो तरह से आप चेंज ला सकते हो ना, एक है कि आप प्रोटेस्ट करो, आप रैलीज निकालो, उसकी एक अपनी वैल्यू है और मैंने वो बहुत की हुई है। अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन एक जंग लड़ो, कि आप पब्लिक को मोबिलाइज करो अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर। जहां पर खवातीन के साथ ज्यादती हो जाती है, तशद्दुद किया जाता है, वहीं पर कुछ मर्द हजरात भी ऐसे इस मुआशरे में मौजूद हैं, भले कम है परसेंटेज लेकिन है जरूर, जिनके साथ भी ज्यादती हो जाती है, जो जरूरत से ज्यादा सीधे होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि अपना हक कैसे लेना है, अपने आप को मनवाना कैसे है, या कहां पर मेरी रिस्पेक्ट है, कहां पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं मुआशरे में जहां पर औरत हावी होती है अपने ही मर्द पर। ऐसी खवातीन के हवाले से आप क्या कहेंगी? जी तहबीना, मैं ये बात जो आपने अभी की है इसके बारे में वाकई ये बात मैं भी पहुंचाना चाहती हूँ। कुछ मर्द हजरात भी हैं कि जो अपने हकूक के बारे में जानते नहीं है, बखूबी वाकिफ नहीं है और उनकी सादगी के सबब जो औरत है वो उसको उसके रिश्तों से दूर करती चली जाती है। और फिर एक आलम ये होता है कि तन्हाई में आ जाता है और तन्हाई में आने के बाद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाइए। सद है, जब आपके पास इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, जब आपके पास इतना खूबसूरत दीन है, इतना खूबसूरत माहौल है, एक औरत ये क्यों नहीं समझती कि अगर वो माँ है तो वो अपने शौहर को उसकी माँ से दूर क्यों कर रही है? ठीक है। अगर वो बेटी है तो वो किसी भी तरह अपने शौहर को अपनी बहनों से दूर कर देगी, उसकी बहनों से दूर कर देगी तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, ज़हनी तन्हाई का शिकार होके वो मर्द बीमार जरूर हो जाएगा। अच्छा, इनसिक्योरिटी होती क्यों है औरतों को? ये बहुत खूबसूरत सवाल है तहमीना। इसके बारे में ये कहूंगी कि खवातीन में एक जनून होता है, खवातीन के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल ये है कि उनकी ख्वाहिश होती है ये घर है तो ये घर मेरा है। अच्छा, ये शौहर है तो शौहर सिर्फ मेरे लिए है,
अच्छा जी, ये हकीकत है। खवातीन के साथ मेरी काफी ज्यादा शोहर तो वाकई सिर्फ अपनी बीवी का ही है, लेकिन वो कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ तरबियत हुई, क्या क्या माँ ने सारी सारी रात जाके जवान किया, बहनों ने साथ दिया, लेकिन वो सब खत्म, वो डोमिनेटेड हो जाती है ना। उसकी कैफियत ये है कि मर्द सिर्फ मेरे लिए है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इतने हकूक हैं, इतने फराइज है। एक शख्स को अल्लाह ने रिश्तों के साथ पैदा किया है, उसे खूबसूरत घराना दिया है। आप उसको एक फल को या एक फूल को अगर आप शाख से तोड़ देंगे तो उसकी हकीकत कुछ नहीं रहती। तो इसी तरह इंसान की कदर कीमत भी अपने रिश्तों से मासूम रहे तब तक है। औरत ये चाहती है कि अगर घर है तो वहाँ सास भी ना हो, वहाँ नंदे भी ना हो, वहाँ कोई और ना हो, वो घर बस मेरा है। जबकि वो इस बात को नहीं जानती कि इकट्ठे रहने में, इत्तेहाद में, इत्तेफाक में जो खूबसूरती है, जो बरकत है और जो इज्जत है, वो मेरा ख्याल है तन्हा रहने में नहीं है। और अगर वो ये चाहे कि उसका शौहर सिर्फ उसकी हद तक महदूद रहे, तो जिंदगी वो है कि इंसान को हर वक्त किसी न किसी की तलब या जरूरत होती है। और ये रिश्ते जो है जिंदगी के साथ लाजमी मलजूम है, खुदा ने बनाए हैं, तो इन रिश्तों की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उम्मे फरवा, ये बताइए कि जिंदगी के बहुत से ऐसे मामलात आ जाते हैं जहां पर हालत जरा नाजुक हो जाती है, जहां पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा अगर किया जाए तो वो रिश्ता बच जाता है, और अगर गुस्से का मुजाहिरा किया जाए तो वो रिश्ता टूट जाता है। आप क्या समझती हैं कि हमारे में गुस्सा जो है वो बढ़ गया है, सब्र और तहम्मुल कम हो गया है, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? जी तहमीना, सब्र और तहम्मुल के बारे में यही बात कहूंगी कि अदम बर्दाश्त की वजह से, गुस्से की वजह से, वक्ती जज्बात की वजह से बहुत से घर ऐसे हैं कि जो टूट चुके हैं, बहुत से घर ऐसे हैं जो इस मराहिल से गुजर रहे हैं। और गुस्से के बारे में यही कहूंगी कि गुस्से को हराम करार ही इसलिए दिया गया है कि गुस्से में इंसान अपनी तमाम आसाबी कुव्वतें खो बैठता है। गुस्से में किए गए फैसले कभी भी बेहतरीन नहीं होते और गुस्से को हराम करार दिया गया। अब देखिए कि गुस्से के बारे में अगर ये मिजान कायम किया गया कि गुस्सा हराम है तो हराम चीज से दूर रहना मोमिन पे फर्ज है। तो कोशिश ये की जाए कि गुस्से से दूर रहा जाए कि अगर आपके अंदर अदम बर्दाश्त की कैफियत भी है तो वहां सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। कुरान तो कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। गुस्सा हराम है, सब्र करने वालों के साथ खुदा है। तो हम क्यों ना इस बात को, मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई गुस्से के आलम में है तो वो इस आया मुबारका को पढ़ता रहे कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मां सब्र का मुकाम परवरदिगार आपको वो अता करेगा कि आपको ज़हनी और कल्बी सुकून मिल जाएगा, आपका गुस्सा फरू हो जाएगा। और अगर गुस्सा कादिर हो गया, गुस्से की कुदरत हो गई, तो फिर तबाही और बर्बादी बस यही इंसान का मुकद्दर बन जाती है। गुस्से के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? जी, नबी मुकर्रम ने, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि नबी मुकर्रम ने ये इरशाद फरमाया कि कभी गुस्से के आलम में कोई फैसला न करना, कभी खुशी के आलम में कोई वादा न करना। नबी मुकर्रम ने ये बात जब ये कह दी है तो इसकी हकीकत यही है कि गुस्से के आलम में कोई फैसला न करना। क्यों? गुस्से के आलम में किए गए फैसले सरीही तौर पे गलत होते हैं। खुशी के आलम में कोई वादा न करना, जब इंसान खुश होता है वो किसी नाजायज बात का भी वादा कर लेता है कि हाँ मैं इफा करूंगा, जबकि वो बात नाकाबिले अमल भी होती है। तो इसलिए ये बात कहती चलूंगी कि गुस्सा तो बहर तौर नबी मुकर्रम की अहादीस के मुताबिक, आयात कुरानी के मुताबिक हराम है और हराम चीज मोमिन के करीब नहीं आती। तो लिहाजा कोशिश की जाए कि अदम बर्दाश्त को जो है वो खत्म किया जाए। अपने नफ्स को परवरदिगार की बारगाह अहदियत में उस वक्त सरबा सुजूद कीजिए कि जब आप आलमे गुस्सा में हैं, कि जब आप गुस्से की कैफियत में हैं, और उससे दुआ कीजिए कि परवरदिगार मुझे इस हराम चीज से निजात दे दे कि जहां तबाही और बर्बादी सिर्फ मेरी मुंतजिर है। तो परवरदिगार तो वो है कि जब उसकी बारगाह में दुआ की जाती है तो फिर जनाब मूसा जैसे पैगंबर के लिए नील में भी रास्ते बन जाते हैं। तो ये गुस्सा तो बहुत छोटी सी चीज है। दस्ते दुआ बुलंद होने चाहिए तो खुदा की बारगाह से रहमतें मिलती हैं। हम खुदा से दूर हैं और दुनियावी मेटीरियलिस्टिक लाइफ को हमने इम्पोज कर लिया, उसको इतना इमर्ज किया है कि आज हम मगरबी कवानीन की तायद करते हुए अपने दीन से दूर हैं। यही वजह है कि अदम इस्तेकाम, अदम बर्दाश्त की वजह से हमारे माशरे में खराबी और बिगाड़ पैदा हो रहा है। मगरबी तर्जो तरीके को हम अपना चुके हैं और अपने दीन से हम दूर होते जा रहे हैं।
बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत से लोग ऐसा नहीं भी करते। मुआशरा इस टाइम मसाइल का शिकार है बेपनाह। हम वबा की बात कर लें या इसके अलावा जाती ताल्लुकात, रिश्तेदारियों की हम बात कर लें, जबकि हम ये जानते भी हैं कि मगरबी तरीका जो है वो हमारे दीन के खिलाफ है और हमारे फायदे में नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम ऐसा करते हैं, क्यों? क्या हमारा यकीन खत्म हो गया है, या फिर हमें आसानी से जो चीज हासिल हो जाए, या अपनी मर्जी को हमने गालिब ले आया? तहमीना, ये एक डायलमा है और इसके बारे में बड़ी पेनफुल कंडीशन है। इसको मैं सिर्फ यही बात कहती हूँ कि मगरिब से भी जो इकदार जो है वो गलत मानी की तरफ जाती हैं, हमारे मुआशरे ने वही अडॉप्ट की। आप देखिए कि अहले मगरिब ने जितनी भी पॉजिटिव चीजें इस्लाम की थी सबकी सब इख्तियार कर ली। आज उन लोगों के यहाँ जितने भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसमें तकरीबन 70% दीन इस्लाम के कवानीन है जो उन्होंने अपने जिंदगी में शामिल कर लिए हैं। यही वजह है कि वो तरक्की की तरफ गामजन है। हम लोगों ने उनके जितनी भी बेबहरा किस्म की इक़दार थी वो तमाम इक़दार इसलिए अडॉप्ट की कि शायद हमारा लाइफ स्टेटस हायर हो जाएगा, शायद हम लोग मुआशरे में बहुत मोतबर हो जाएंगे, शायद ये सोफिस्टिकेटेड मैनर्स है। जबकि ये चीज जो है ये इंतहाई गलत है कि हम लोग मगरिब की वो इक़दार अपनाए हुए हैं कि जो हमारे दीन के मुनाफी हैं, जो हमारे नबी मुकर्रम की हदीस के मुनाफी हैं। और जब जब नबी मुकर्रम के खिलाफ कोई कदर आएगी, कोई भी दौर आएगा, कोई भी अखलाक आएगा, तो फिर उसका हाल जबू हाली ही होगा। बिल्कुल ठीक है। इखलाक किसे कहते हैं? इखलाक किसे कहते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल। इखलाक यही कहूंगी, मुख्तसर से अल्फाज में बस ये कहूंगी, इखलाक उसे कहते हैं कि अगर कोई अपनी फितरत के मुताबिक गंदगी का ढेर टोकरी में लेके छत पे बैठ जाए और कोई बा इखलाक का खूबसूरत तरीन मुजस्सम नमूना अगर करिए से गुजरे और छत पे बैठी हुई वो औरत गंदगी का ढेर उस खूबसूरत हस्ती पे गिरा दे, तो इखलाक का मुजस्सम नमूना क्या करे कि उसको देखे और देख के दुआ दे कि तुमने जो किया ये तुम्हारा ज़र्फ है और जो मेरा ज़र्फ है मैं तुम्हें दुआ देता हूं। और अगर वो गंदगी नहीं फेंकने आती है तो इखलाक के मुजस्सम नमूने ने बताया कि इखलाक ये होता है कि अगर 3 दिन कोई गंदगी फेंकने नहीं आया तो खुद तशरीफ ले गए। सुभान वो रहमतुल लिल आलमीन के जिनकी कसीदा सराई परवरदिगार करता है। इखलाक का वो मुजस्सम नमूना जो हमारे लिए परवरदिगार ने दुनिया में मबूस किया था, खुद पहुंच गए, 3 दिन तक गंदगी ना फेंकी तो पूछा क्या हुआ, आज 3 दिन से तुम गंदगी नहीं फेंकने आ रही हो? तो रो के कहने लगी कि मैं कुर्बान हो जाऊं कि आपके अखलाक के क्या कहने, कि आपके हुस्न खुल्क का क्या कहूं, कि आपने अपने अखलाक के वो इकदार दिखाई हैं कि आज आप मुझे पूछने के लिए आए हैं कि मैं रोजाना ये कभी अमल करती हूँ और आपने मेरी ये आदत की तो मुस्कुरा के कह दिया कि परवरदिगार ने मुझे अखलाक हुस्ना अता किया है। और यही अखलाक हुस्ना हमारे लिए नमूना है और हमें मेयारे इखलाक भी यही बताता है कि कांटे अगर कोई बिछाए तो दुआ देने लगे थे, पत्थर कोई मारने लगा था, खून बहने लगा था, दुआ देने लगे थे। हमारे पास तो इखलाक का एक ऐसा मंबा मौजूद है कि अगर हम अफकारे जनाब खत्मी मर्तबा देख लें तो हमें दुनिया में किसी से इखलाक सीखने की जरूरत पेश ना है। अपने इखलाक को बुलंद कैसे किया जा सकता है? इखलाक को बुलंद कैसे किया जा सकता है? मैं आपसे फिर यही बात कहूंगी कि इखलाक का मयार ये है कि हम उन हस्तियों को देखें जिन हस्तियों ने हमें दीन इस्लाम दिया। मोहम्मद वाले मोहम्मद के अतवार, उनके अतवार क्या है? सादगी का ये आलम है कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी शहजादी जब अपने घर में तशरीफ फरमा है और फिर पैगाम मिला कि बीबी फला के घर शादी है और उन्होंने आपको दावत दी है, मदऊ किया है, तो एक मर्तबा अपने जिस्म पे पहने हुए लिबास को देख के कहा कि इसमें तो जगह जगह जो है वो पैबंद लगे हुए हैं, मैं वहां कैसे जाऊंगी? तो परवरदिगार आलम ने जन्नत से जिनके लिबास नाजिल कर दिए हैं उनकी सादगी का ये आलम है कि उन्होंने दुनिया के अतवार को देख के, दुनिया की इकदार को देख के कभी तलबे दुनिया नहीं की है। इखलाक का ये आलम है कि जिस हाल में थे शुक्र करते थे, सरबत सजूद होते थे, अगर फाका भी किया तो शुक्र किया, अगर मसाइब व आलाम भी बर्दाश्त किए तो शुक्र किया। हमारा इखलाक कैसे बुलंद हो सकता है? आज हमारे पास तमाम दुनिया की सहूलतें मौजूद हैं, हमारे पास घरों में वाफर गल्ला है, हमारे पास अच्छे लिबास है, हमारे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, लेकिन सदैव इखलाक नहीं है। सही।
हमारे पास इखलाक नहीं है और अपने इखलाक को बुलंद किस तरह से करना है, इस पर हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की है। आप क्या कहेंगी उम्मे फरवा, हमारे तमाम नाजरीन, देखने और सुनने वालों को जिनका इखलाक अच्छा है और वो लोग जिनका इखलाक अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे नाजरीन, हमारा मुआशरा और हमारा ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि जब तक हमें बुरी चीज से बावर ना कराया जाए, उसके नुकसानात का ना बताया जाए और वो असल कड़वी हकीकतें ना सुनाई जाए, तो हमें बात का यकीन ही नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट है हमारे मुआशरे का। आप क्या समझती हैं कि बुरे इखलाक के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? तहमीना, बुरे इखलाक की निस्बत से ये बात कहूंगी कि आज हमारे मुआशरे में जहाँ खवातीन की बात हो रही थी, जहाँ मर्दों की बात हो रही थी, मैं बार बार इस्तदा करती हूँ कि हम लोग, अगर हम दीन इस्लाम का अतबा करते हैं, अगर हम नबी मुकर्रम की उम्मत होने का दावा करते हैं, तो मेरे नबी फरमाते रहे, तरका सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया वो मुझ में से नहीं है। तो नबी मुकर्रम ने तो इखलाक का ये जीना बताया है कि अपने दुश्मनों से हुस्ने सलूक करो। आज हमारे मुआशरे में लम्हाए फिक्रिया है कि हम अपने प्यारों से हुस्ने सलूक नहीं करने के लिए तैयार। अगर नबी मुकर्रम ने ये कहा कि कुर्बानी दीजिए, आज कुर्बानी कौन दे रहा है? मैं ये इस्तदा करती हूँ, अगर आप माएं, बहनें, बेटियां हैं, हकूक को पामाल मत कीजिए। क्यों? एक औरत एक मुआशरे को बनाने में, उसको तामीर करने में मस्बत किरदार अदा करती है, तो लिहाजा अपने घरों के माहौल को इस तरह मुरतब कीजिए कि जहां अदम इस्तेकाम ना हो, अदम बर्दाश्त ना हो, जहां गीबत ना हो, जहां कीना परवरी ना हो। अगर कोई आपके घर आ गया है तो फिर नबी मुकर्रम के अफकार के मुताबिक उसकी इज्जत और तकरीम आप पे लाजिम और वाजिब है। अगर आपके रिश्तेदार हैं तो उनके साथ हुस्ने सलूक कीजिए, सिला रहमी इख्तियार कीजिए कि नबी मुकर्रम ने फरमाया कि हर बात की माफी है, सिला रहमी की माफी कभी नहीं होगी। जो शख्स अपने अजीज अकरबा रिश्तेदारों से बद इखलाकी करता है उसकी माफी नहीं है। तो कोशिश कीजिए, जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं, जो आपके अमीर रिश्तेदार है, मैं तो कहती हूँ गुर्बत और इमारत जो है वो ईमान के मुताबिक होती है, जाहिरी दौलत के मुताबिक नहीं होती। जिसके पास ईमान की दौलत है वो अमीर है, जिसके पास ईमान की दौलत नहीं है वो बेतहाशा दौलत रखते हुए भी गरीब है। बस इतना कहना चाहूंगी कि घरों में जहां रिश्तों की तकरीम खत्म हो गई है, कोशिश कीजिए अपने खुदा को मना लीजिए और अपने खुदा के अजाब से निजात पाने के लिए उसके हुक्म का अतबा कीजिए। अपने रिश्तों को की कदर को जानिए, उनके हकूक को जानिए और अपनी जिंदगी को और दूसरों की जिंदगी को पुरसकून रहने दीजिए कि उन्हें भी जीने का हक है और आपको भी जीने का हक है। इस बात को सोचते हुए अपने घरों में खूबसूरत माहौल बनाइए। बर्दाश्त को, सब्र को और खुश इखलाकी को अपनी शख्सियत में लाजिम करार दे दीजिए और इन्हीं चंद बातों से हमारे घरों के माहौल जब बेहतर होंगे तो हमारे मुआशरे के अंदर एक मस्बत पैगाम होगा और हम अच्छे शहरी आने वाले दिनों में अपने मुआशरे को दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। उम्मे फरवा, ये बताइए कि जहां पर हमने मियाँ बीवी को, माँ को, बहन को, बेटी को डिटेल में डिस्कस किया है, वहां पर औलाद को ना किया जाए तो ये औलाद के साथ ज्यादती होगी। आप क्या समझती हैं उम्मे फरवा, औलाद घर का एक मेन हिस्सा होती है? बिल्कुल ठीक है। औलाद के इखलाक की हम बात करें तो कुछ औलादें तो इतनी अच्छी होती हैं कि इंसान उनको देखता है और रूह खुश हो जाती है कि इतना फरमाबरदार बच्चा है ये, इतनी फरमाबरदार बच्ची है ये। कुछ औलादें ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर ये भी कहा जाता है कि औलाद ऐसी भी होती है, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह इसके साए से भी बचाए। ऐसे बहुत से वाकयात आपको मिलेंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ अखबारात में। औलाद का इखलाक कैसा होना चाहिए अपने वालिदैन के साथ, ये बता दीजिए। जी तहमीना, औलाद की निस्बत से बस यही बात कहूंगी कि आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि औलाद की सबसे पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और औलाद की तरबियत में सबसे पहला किरदार जो होता है वो माँ का होता है। और फिर मैं ये बात कहूंगी कि हमारे यहाँ आज के दौर में जहाँ माओं को बहुत रिलैक्सेशन मिल गई है, जहाँ बच्चे पहले तरबियत की जाती थी, पाले जाते थे, वहां इतनी सहूलतें नहीं थी, लेकिन आज के दौर में बहुत ज्यादा सहूलतें हैं। लेकिन आज की माँ अपने हकूक से दूर है, अपने फराइज से दूर है, अपनी ड्यूटीज को इग्नोर कर रही है, जिसकी वजह से बच्चों में जो है वो पॉजिटिव मैनर्स कम है। और जो लोग अपने बच्चों को टाइम देते हैं, जो लोग अपने बच्चों पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, जो माएं अपने बच्चों के अतवार, इकदार, तौर तरीकों को बाकायदा सर्च करती हैं, देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। मैं ये कहती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ पे मैंने ये देखा है कि अगर आप बच्चों को
तरबियत के उस मेज़ान पे खड़ा करें कि जहां दीन भी आपसे खुश हो, जहां दुनिया भी आपके साथ हो, तो कभी आपका बच्चा नाकाम नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये तरबियत का ये आलम है कि माँ तरबियत शुरू करती है और माँ ही अपने बच्चे को पॉजिटिव वे पे लेके जा सकती है। वो अपने बच्चे को सब्र सिखाएगी, वो अपने बच्चे को आनत सिखाएगी, अपने बच्चे को ताबेदारी सिखाएगी, बड़ों की इज्जत करना सिखाएगी, छोटों की तकरीम सिखाएगी। अगर तरबियत में चीजें शामिल हैं, माँ खुद ये सब कुछ करती है, तो बच्चे की तरबियत खुद ब खुद होगी, उसे सिखाना नहीं पड़ेगा। अगर माँ बदजुबान है, अगर माँ अपने हकूक की पासदारी नहीं करती है, बड़ों की तकरीम नहीं कर रही है, छोटों की इज्जत नहीं कर रही है, तो मैं आपको बताऊं कि एक मॉडल है माँ, एक सिंबल मॉडल है कि जो कुछ वो करेगी वो ऑब्वियसली उसका बच्चा अडॉप्ट करेगा। तो तरबियत में सबसे बड़ा किरदार माँ का है। आज अगर बच्चा ताबेदार है तो जान लीजिए कि वो एक बेहतरीन माँ का बेटा है, एक बेहतरीन माँ की बेटी है। अगर कहीं बच्चे की कोई गलती नजर आती है, माँ का फर्ज है कि वो उसी वक्त अपने बच्चे की इस्लाह करे। जो लोग नाकाबिले इस्लाह हैं या जो बच्चे नाकाबिले इस्लाह हैं, मुआशरे पे भी बोझ है और अपने खानदान पे भी। अच्छा, ये बताइए उम्मे फरवा कि कोई भी माँ अपने बच्चे को बदतमीजी नहीं सिखाती, कोई भी माँ अपने बच्चे को ये नहीं सिखाती कि आप मेरे सामने जबान चलाएं या कोई ऐसी हरकत करें जिससे बाप का या माँ का दिल दुखे। आप क्या समझती हैं कि मुआशरे का भी इसमें बड़ा किरदार है, सोसाइटी का बड़ा किरदार है? जिन दोस्तों के साथ आप बैठते हैं, उनकी जो आप कहेंगे कि आप उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, उस सोहबत का बड़ा किरदार है। तो माँ अपने बच्चे को गलत काम कभी भी नहीं सिखाती, लेकिन माँ तरबियत भी करती है। माँ की गोद पहली दरसगाह है, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो बच्चे जो बिगड़ जाते हैं सोहबत की वजह से, उनके हवाले से क्या कहेंगी? बच्चा जब सर निकालना शुरू होता है तो वो माँ से डरना कम हो जाता है और बाप के दबके से जरूर डरता है। माँ एक ऐसी चीज है कि माँ का दिल अपने बच्चे के 2 जुमलों पर ही मोम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो कहा, और इसके बारे में बात कहती चलूंगी कि माशरे में जब बिगाड़ का ये आलम है कि हर जगह दर्सगाहों में आज लम्हाए फिक्रिया है, दर्सगाहों में हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। आज अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के एटमॉस्फेयर को देखें और आज से तकरीबन 20 ईयर बिफोर आप देखें कि तब वाक़यात और हालात बहुत मुख्तलिफ थे, तब रूल्स थे, रेगुलेशंस थी, तब आपको पता था कि कानून और कवायद ये हैं। अब जबकि तमाम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स में कोई हद नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, करप्शन में खुद उस्तातिज़ा मुलव्वस है, तो बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि बच्चा महफूज कैसे रहे। बिल्कुल, घर से उसकी तरबियत अच्छी होगी, लेकिन जब वो इन जगहों पे जाके हिरासा किया जाएगा, जब उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा, ऑब्वियसली उसकी शख्सियत डैमेज होगी। तो ये चीज मुआशरे की इस्लाह में आ जाती है। यहाँ हमारे जितने भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनके लिए लाजिम है कि वो तमाम जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ ऐसे कवानीन नाफिज करे कि जिनमें हदूदो क़यूद भी हों, जिनमें पाबंदियां भी हों, जिनमें रिस्ट्रिक्शंस भी हों, जिनमें इखलाकियात भी हो, ताकि हमारी नस्ल को एक बाउंड्री मिले, एक हद मिले। जब बेहद हो जाता है तो फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। तो यही कहूंगी कि बच्चों की तरबियत घर से बेहतरीन होती है, लेकिन जब बेदारों में जाके बच्चों को वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो इखलाकी इक़दार नहीं मिलती और वो गलत रविश पे चलते हैं, तो फिर एक माँ का बच्चा नहीं बिगड़ता, ये जानिए कि वो माशरे का बिगाड़ हो रहा होता है। उम्मे फरवा, जब किसी को वजारत मिलती है तो वो अपनी वजारत के बड़े चर्चे करता है, जब कोई ब्यूरोक्रेट बनता है तो वो उसके बहुत चर्चे करता है, जब कोई उस्ताद बनता है तो वो अपने लेक्चर्स दिखाता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जब कोई माँ बनती है तो फिर वो अपने बच्चे को तवज्जो देती है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है और स्कूल को ज्वाइन करता है, माँ स्कूल छोड़कर आती है और वो बच्चा स्कूल में बैठने को तैयार नहीं होता, रो पीट रहा होता है कि मैंने माँ के साथ ही वापस घर जाना है। ये माँ का दिल होता है कि माँ वहां छोड़ आती है कि नहीं, अब तुम्हें यहाँ पढ़ना है आधा दिन और उसके बाद तुम मेरे पास आओगे। ये वो तमाम चीजें हैं जो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ और हम तमाम मुआशरा और तमाम लोग भी इस बात को जानते हैं। आप क्या समझती हैं कि ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स और डिप्लोमा होल्डर्स, मुख्तलिफ जगह जो बनाई गई हैं, यहाँ पर हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जहां पर लेक्चर दिया जाए औलाद को कि आपकी माँ क्या चीज है, आपका बाप क्या चीज है, दादा दादी, नाना नानी, इन रिश्तों पर लेक्चर दिया जाए। कोई उस्ताद भी मुहिम चला लें, कोई ऐसे पम्फलेट्स भी छपवा लिए जाएं जिसमें औलाद की तरबियत हो सके, जिसमें औलाद को बताया जा सके कि बेटा जब तुम अपनी माँ को या बाप को मुस्कुरा कर सुबह उठकर देखोगे तो तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। तुम तो उठ के सबसे पहले ये कहती हो आज पॉकेट मनी कितनी मिलेगी।
آج یہ کام کر کے دیں, عید آ رہی ہے کپڑے دے کر دیں. بہت خوبصورت ایڈمائریبل, بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے, اور آپ نے پریسکرپشن اتنی خوبصورت کر دی کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ آپ کی تھنکنگ بہت پازیٹیو ہے. اور اس چیز کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جہاں آپ نے کہا کہ استاد جو ہے وہ اپنا مثبت کردار ادا کرے اور حقوق کے بارے میں, تو میں یہ کہوں گی تہمینا کہ ہمارے گھروں میں جہاں کنسیپشن ہے کمبائنڈ فیملی کا, جہاں کنسیپشن ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمبائنڈ فیملیز میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں بہت سے رشتے ہوتے ہیں اور ہر رشتے کی ایک اپنی قدر ہے, ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ماڈریٹ ایجوکیشن بچوں کے لیے ہوتی چلی جا رہی ہے, بچے بھی بہرا جو ہے وہ ہر رشتے کے ساتھ جو ہے وہ خود کلامی بد زبانی کرتے ہیں, اور وہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ماں باپ بے اختیار ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ صرف اساتذہ نہیں, میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ طور پہ والدین کے بارے میں موٹیویشنل پروگرامز ہونے چاہیے, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بالکل, چاہے وہ کسی ڈرامے کی صورت میں ہو, چاہے وہ ڈیبیٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی بھی نوعیت سے ہو, کوئی مقالہ ہو اسی طرح, یا جتنے بھی پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے لیے, ابھی ایک دن گزر گیا اور اس میں فادر ڈے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ فادر کا جو ہے وہ اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے اور بچوں کو ایکسائٹمنٹ تھی. تو وہاں بہت سے اسلامک اسکالر سے بات ہوئی تو کچھ لوگ اسے پوائنٹ آؤٹ کرنے لگے کہ فادر کا ایک دن نہیں ہوتا, باپ کا تو ہر دن ہوتا ہے. لیکن میں نے اس چیز کے بارے میں فیور کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم ایک دن بچوں کو یہ فکر ضرور ہے کہ آج ہم نے اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہاں, مدر ڈے بھی مناتے ہیں بچے, مدر ڈے بھی بناتے ہیں, سیلفیز لگاتے ہیں اپنی اپنی والز پر, یہ مثبت فکر ہے کہ جہاں باپ کی حیثیت, اس کی اقدار, اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے باپ کی ایفرٹس, جو پریویس ایفرٹس ان کی لائف میں رہی ہیں, بڑی بڑی پرسنالٹیز نے اپنے فادرز کی ایفرٹس لکھی ہیں, اپنے مدرس کی ایفرٹس لکھی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آج کے دور میں یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے اور روشنی کی لہر ہے کہ جہاں ابھی بھی ہمارے اذہان میں ماں اور باپ کی قدر و قیمت, ان کی قربانیوں کی قدر باقی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے بھی آپ نے کہا اساتذہ کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں رہنے والے جتنے رشتے ہیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کیجئے, ان کو ان کے رشتوں کی اقدار بار بار بتائیے تاکہ ان کی زندگی میں ان کی اہمیت ہمیشہ رہے. بالکل ٹھیک ہے ام فروا, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جامعہ برکات العلوم, جامعہ فاطمیہ تعلیم القرآن, ریلوے کیریج شاپ, جامعہ فاطمیہ بنات المسلمین مغل پورہ لاہور میں محدود نشستوں کے لیے داخلہ جاری. طلبہ و طالبات کے لیے الگ الگ کیمپس, کمپیوٹر لیب جیسی تمام سہولیات سے آراستہ اور فری میڈیکل. لائٹ جانے کی صورت میں جنریٹر کی سہولت میسر ہے. رابطہ 0321 4121 515 0333 4263 781. ہینڈ سینیٹائزر الفا 1 پاکستان کا پہلا FDA اور ڈریپ سے منظور شدہ فارمولے کے تحت تیار کردہ 99.9% جراثیم مارتا ہے. الفا 1 50 ملی لیٹر, 100 ملی لیٹر اور 1 لیٹر میں بھی دستیاب ہے. الفا 1 مارکیٹڈ بائی میڈیسیف نیم آف ٹرسٹ. آرڈر کے لیے رابطہ نمبر 0300 8736 752. جامعہ برکات العلوم, جامعہ فاطمیہ تعلیم القرآن, ریلوے کیریج شاپ, جامعہ فاطمیہ بنات المسلمین مغل پورہ لاہور میں محدود نشستوں کے لیے داخلہ جاری. طلبہ و طالبات کے لیے الگ الگ کیمپس, کمپیوٹر لیب جیسی تمام سہولیات سے آراستہ اور فری میڈیکل. لائٹ جانے کی صورت میں جنریٹر کی سہولت میسر ہے. رابطہ 0321 4121 515 0333 4263 781. آپ تمام دیکھنے والوں کی, سننے والوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اچھا جی. ایک تو میں اوپر ہو گئے, میں جاب لیتا ہوں. اول آخر درود و سلام پڑھ کے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے پہ آپ دم کر لیں. بیٹے کیا مسئلہ, وہ 7 سال کا ہو گیا تو اس کو نا چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے, دماغی طور پر بھی اس کا علاج کروایا, بہت زیادہ
41 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے نا وہ شہد پر دم کر لیں. شہد میں بھی حضور نے فرمایا شفا ہے, سورۃ فاتحہ میں بھی شفا ہے. خط بھیجیے گا ایک جوابی لفافے کے ساتھ, چونکہ یہ تھوڑا لینتھی مسئلہ ہے, تعویذات کے حوالے سے انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی. بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کی شادی غیروں میں بہتر رہے گی یا اپنوں میں؟ پورا واقعہ مغرب کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں. آپ کوئی بھی گھر میں فیملی ممبر پڑھ سکتا ہے. دیکھیے پروگرام استخارہ پیر سے ہفتہ شام 6 بجے. اگر آپ کو لگے کہ سانس کی پرابلم ہے تو آپ ہاسپٹل نہیں جانا چاہتے تو گھر میں کیا تدابیر ہیں جو آپ وہ کرتے ہوئے سانس چیک کر سکتے ہیں؟ آکسیجن ٹھیک ہے. کرونا کی دوائی از فار دا سمٹمس. اگر آپ کو بخار نہیں ہے تو آپ پیناڈول نہیں لو گے, آپ کو کھانسی نہیں ہے آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرو گے, آپ کو بریدنگ ایشوز نہیں ہے آپ آکسیجن نہیں لو گے. اب لاٹ آف پیپل فیل کہ نہیں بخار نہیں بھی ہے, آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی آکسیجن ماسک لگا رہے ہیں. دیکھیے پروگرام چٹ چیٹ ود مصطفیٰ شاہ اتوار کی رات 10 بجے صرف کوہ نور ٹی وی پر.